अच्छा लग रहा है यहाँ पर. How, which language you people are comfortable with? English, Urdu, Hindi, whatever. English. And anybody for Hindi or Urdu? Okay. Mix will do, yeah, because I just wanted to know how comfortable they are with the communication. So I think I am at a right place. I see so many girls and even the boys, and they are not, the girls are not in much, the difference is not much more than the boys. So I see, I am happy to see the boys as well here in the crowd. So I would like to know, any of the girls, your school's name is Crescent High School. So do you know the meaning of, can one of you just tell me the meaning of Crescent? Any one of you? What is it? Just tell me. Which phase of moon? So it is the initial phase, which symbolizes your name of the school only symbolizes the growth and development. Okay, so I think you people have been आप एक अच्छे स्कूल और एक अच्छे नाम के ज़ेरे साया हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. आप शुरू से right from the beginning you are under good guidance and good supervision. So thanks to your mentors and your management committee. Most of us know that Iqra, the word which comes in Quran. So what does it mean? Any of the girls or even the boys can try. I'm mainly pro girls, huh? So just pardon me. So read, yes, read or recite. So you all know that this was the first word which was revealed to our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and Allah Ta'ala himself is telling us to read, to recite, to seek knowledge, to attain education. Okay, so we have to attain education or seek knowledge to enlighten ourselves. And it is just not the enlightening the brain, but it is the purpose of the education is the overall development of our personalities, our character, and also in today's era it is the getting some good degree so that you can live your life and you can work throughout your life which you love. So try this 10 years of your life, like you have come to the 10th standard, I suppose. All of you are from 10th standard? Yes. Okay. So this is, you have been just walking on road. The ladder has still not come. ओके आप लोग अभी तक सिर्फ एक सीधे रास्ते पर चल रहे थे. जो ऊंचाइयों की जो सीढ़ियां हैं ना, अब शुरू होंगी. अब आपकी ज़िंदगी की ऊंचाई की जो सीढ़ी, पहली पायदान जो होगी, फर्स्ट स्टेप ऑफ योर लैडर ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, और जो आपकी तरक्की जो होगी ना, तो उसकी पहली पायदान आप 10th स्टैंडर्ड के बाद उस पर कदम रखोगे. तो बहुत से बच्चे समझते हैं कि हमने 10th पास कर लिया, अभी हम बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, मैंने देखा है, एंड देन दे लीव द स्कूल और दे जस्ट ड्रॉप आउट फ्रॉम द एजुकेशन. So I would like to tell you all that this 10th standard is just walking on the road. Once you reach the first step of the ladder, that is the 10th standard exam, SSC board. I think this is SSC board exam, no? So that first ladder is SSC board exam. और उसके बाद तरक्की के सारे जीने शुरू होते हैं. ये पहला, ये आखिरी जीना नहीं है, स्पेशली फॉर द बॉयज़ प्लीज़, और इवन द गर्ल्स के बहुत पढ़ लिया, 10th हो गया, अभी हमको घर से नहीं आ. मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, मेरे पेशेंट्स आते हैं कि बस 10th स्टैंडर्ड हो गया और अब बहुत घर में मना कर दिया है कि पढ़ना है. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आर एनी पेरेंट्स ऑल्सो देयर इन द क्राउड? No, only the students. Okay. So I would like to tell you all that this 10th standard is just the base of your future education. Okay, so just take it as a base and go ahead on this basis. This year is very important for you all, and as I told you, this is to develop your character, your overall personalities, and also you should observe yourselves or to find out what is your passion, where you are inclined to. Okay, so everybody will not be good in scoring in maths or science. They won't score 100 out of 100 in maths, science, but yes, that boy will be good
in English or literature or social sciences or even arts or crafts or anything. So this is not that if you are not scoring good in one subject, you are not good at all. Okay, so everybody has the capability. आप लोगों के अंदर सलाहियत है और बहुत ज़्यादा सलाहियत है, तो इस एक साल में पढ़ाई के अलावा आप ये भी ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरफ माइल हैं, वेयर योर इंक्लिनेशन इज़, कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उन्हीं में से आपको ढूंढना है कि आप किस तरफ माइल हैं, आपको क्या चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेहनत सारे सब्जेक्ट्स पे कीजिए, फिर आगे जाकर आप उस फील्ड को अपना करियर बना सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक साल में आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। एंड दिस यू विल बी अपीयरिंग फॉर योर बोर्ड इन February. Okay, so all of you have started studying very hard. Okay, the first and foremost thing when you plan your study is the planning first, and then first comes the discipline. How disciplined you are. What is discipline? Can anybody? Any perception? आप लोगों को कुछ तो समझ में आएगा क्या डिसिप्लिन क्या होता है? हाँ बताइए। Yes, the way of living. Anybody else? You're partially correct. I just want some addition from the other boys or girls. Yes, tell me. I'm not here. To be punctual. Very good. To be punctual, the way of living. And who else? Somebody else you can add to this so that we can define discipline here only. Manners and etiquette. Yes, manners and etiquettes. To present yourself. Yes. Yes, tell me. Dedication. Okay, so it is a way of living, as this girl said, but it is a controlled way of living. It is a controlled way of living which is controlled by some rules and regulations. Okay, you have to obey some commands and orders, some rules and regulations, and that way of living is a controlled way. It is not uncontrolled. Okay, so that is discipline. So first and foremost thing which comes in the preparation of your exams is discipline. सबसे पहले हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो सोना जागना, ठीक है, कि आप सोते कब हैं, उठते कब हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रेइंग, नमाज पढ़ते होंगे। यस, तो जब आप 5 वक्ता नमाजी हैं माशाल्लाह, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक, आधा डिसिप्लिन तो आपके अंदर ऐसे ही आ जाएगा, बिकॉज यू विल राइज बिफोर द सनराइज। ओके, अगर आप फजर पढ़ के आने की प्लान कर रहे हो स्कूल में तो आप जल्दी उठोगे, लेकिन आप जल्दी उठने के लिए ऐसे नहीं है कि आप रात को 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो। यू हैव टू स्लीप ऑल्सो अर्ली, सो दिस कंप्लीटिंग योर स्लीप ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। इट इज़ एटलीस्ट मिनिमम 6 hours to 8 hours। अगर आप 8 hours सोते हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 6 घंटा आपको सोना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारा फरवरी में एग्ज़ाम है, यू जस्ट से कि नहीं मुझे जागना है, रात को जागना है 2 घंटा, आज तो मैंने 2 घंटा, आज मैं 2 ही घंटा सोकर आई हूँ, आज मैं 3 घंटा सो, ऐसे होता है ना कि आज मैंने बहुत पढ़ाई की। दैट इज़ नॉट करेक्ट। यू हैव टू स्लीप adequately to perform well, to give your best in your exam and in your day-to-day classes also. अगर आप अच्छे से नींद पूरी करके आए हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन क्लास में है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी मेमोरी शार्प रहेगी एंड आपका परफॉर्मेंस नेचुरली बेटर होगा। तो जो ये डिसिप्लिन में सबसे पहले मैंने जो सोना और उठना, तो ट्राई टू स्लीप अर्ली। ईशा बाद ज़्यादा फालतू चीज़ें ना कीजिए, टाइम पास ना करके आप सोने की कोशिश करिए। जो भी आपका स्टडी इस तरह से प्लान करिए कि आप रात में कम से कम 6 से 7 घंटा, 8 घंटा आप सो रहे हैं, ठीक है। देन कम्स दी योर न्यूट्रिशन। ओके, मैं पढ़ाई की बात कोई सी नहीं कर रही हूँ। देन कम्स योर न्यूट्रिशन, योर हेल्दी डाइट। कितने बच्चे अच्छा नाश्ता करके आते हैं स्कूल, सुबह में नाश्ता अच्छे से करके आते हैं, भाग के नहीं आते कि नहीं मुझे देर हो रही है, मुझे स्कूल जाना है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो नाश्ता अच्छा करके आते हैं घर से, प्रॉपर आराम से बैठकर? वेरी फ्यू, ऑलमोस्ट 20% इफ आई से।
मैडम, है ना? सिर्फ 20% बच्चे हैं जो हाथ उठाए हुए हैं और जो ये कह रहे हैं कि मैं नाश्ता अच्छा करके आता हूँ। तो दिस ब्रेकफास्ट इन योर डे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ योर डे, ओके? एंड फॉर अ स्टूडेंट और एनी वर्किंग पर्सन हु हैज़ टू वर्क थ्रू आउट द डे, ब्रेकफास्ट, तो एम्फसाइज ऑन ब्रेकफास्ट। आप जो भी खाते हैं एक कंप्लीट मील लेने की कोशिश करिए। आमतौर पे देखा है मैंने कि बच्चे भागते हैं, माएँ पीछे दौड़ती रहती हैं, फिर भी बच्चे भागते हैं कि हमें देर हो रही है, नाश्ता नहीं करना है। तो ट्राई टू टेक सम प्रोटीन्स, जैसे कि आप अंडा सभी खाते होंगे, एक बॉइल्ड एग ले लीजिए, बॉइल्ड एग, और जो अंडा नहीं खाते हैं वो स्प्राउटेड बीन्स ले लीजिए, एनी पनीर, मिल्क, तो एग, मिल्क एंड सम रोटी पराठा, एनीथिंग दैट विल मेक अ कंप्लीट मील एंड अ गुड ब्रेकफास्ट। सो ट्राई टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड देन कम टू स्कूल, ओके? सो एवरीबडी, जो 80% जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, आई फील कुछ दिनों में, फ्यूचर सम डेज में, दे विल ऑल्सो बी एबल टू रेज देयर हैंड्स व्हेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ओके? या सो दिस, अरे हाँ तो बोलिए। ठीक है, yes, inshallah, है ना? So everybody will try to have a good breakfast before coming to school. All these things come before we talk about the studies, okay? And after discipline, nutrition, because एक healthy, जब तक आप healthy खाना नहीं खाएंगे आप healthy नहीं रहेंगे। आपका जिस्म healthy नहीं है, आपका दिमाग भी healthy नहीं रहेगा। तो आपकी सुस्ती, याद नहीं रहना, बार बार बीमार पड़ना, एंड जस्ट ट्राई डोंट फॉल सिक नियर योर एग्जाम्स। मैंने देखा है कि आई गेट पैनिकी कॉल फ्रॉम पेरेंट्स, माई चाइल्ड इज़ वॉमिटिंग, फीवर आ गया है, थ्रोट पेन हो रहा है, जो कि पूरा साल बच्चा ठीक रहता है, एंड जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स मेनी चिल्ड्रन फॉल सिक बिकॉज ऑफ दिस अनहेल्दी हैबिट्स of not eating properly, getting stressed unnecessarily, and remaining awake throughout for so many days at a length. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। प्रिपरेशन आपका ऐसा रखना है कि आपको एग्ज़ाम के दिनों में भी जागने की ज़रूरत ना पड़े। सो उसके लिए सबसे पहले, आफ्टर डिसिप्लिन व्हाट विल कम? योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंग विच इज़ डन डेली, ऑन डेली बेसिस। आप अपने टाइम को किस तरह से डिवाइड करते हैं, सो दैट यू कैन टेक टाइम आउट फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर रिलैक्सेशन, फॉर योर रिक्रिएशन, वॉट एवर इज़ देयर। आपको टाइम निकालना है और सारी चीज़ों को टाइम देना है। अगर आप खेलना कूदना चाहते हैं तो देयर शुड बी टाइम फॉर योर स्पोर्ट्स ऑल्सो एवरी डे। इट्स ऐसा नहीं है कि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका स्पोर्ट्स बंद है। इफ़ द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, टेनिस, और एनी ऑफ यू आर प्लेइंग एनी गेम, you should follow your take time out for your sports, at least 1 hour, half an hour to 1 hour for your sports. Don't give up on your recreational activities or your sports activities. They are very important, okay? They will rejuvenate your mind and body for your studies. So just don't give up your sports and physical activities, because I've seen people, कितने लोगों ने खेलना छोड़ दिया, 9th तक खेलते थे और अभी 10th में आ गए तो मना हो गया, घर से मना कर दिया होगा कि नहीं अभी 10th में आ गए हैं, सो अभी आपका स्पोर्ट्स बंद, आप फुटबॉल नहीं जा सकते, है ना? यस, दे आर द सफरर्स, आई नो बॉयज़, सो दे आर द मेन सफरर्स कि उनका फुटबॉल क्लासेस बंद हो गया, और जो भी वॉट एवर, इवन गर्ल्स इफ दे आर प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, यू शुड फॉलो दैट, नॉट बियॉन्ड लिमिट्स। इफ पेरेंट्स ने बोला है कि आधा 1 घंटा खेलना है तो उतना ही खेलना है, ठीक है? अगर आप जाओगे और 4 घंटे के लिए गायब हो जाओगे तो डेफिनेटली वो मना करेंगे कि आपको नहीं खेलना है, ठीक है? सो जस्ट ट्राई टू गिव ऑप्टिमम, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टाइम। तो 1 घंटा, आधा घंटा, वॉट एवर यू कैन मैनेज, बट दैट फिजिकल एक्टिविटी शुड बी देयर। इफ द गर्ल्स आर गोइंग फॉर अ वॉक और एनीथिंग, कंटिन्यू विद दैट. Don't sit at home or don't give up on your recreational or sports activities. So this time management, अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करोगे तो you will be able to take time out for the other things. Okay, if you are doing some other activities like cooking or embroidery or anything, girls must be doing that. So take time out for that every day or every week, so that you rejuvenate yourself. आप अपने दिल दिमाग को तरोताज़ा कर सकते हैं इस अपनी पढ़ाई के लिए। तो वो आपको मैंने देखा है, पढ़ाई हो गई, बस मैंने 2 घंटा पढ़ लिया, अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, स्पेशली बॉयज़, एंड देन दे गो टू द ऑनलाइन गेम्स, है ना? ये मेरा ब्रेक हो गया। यू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विद द बैड थिंग्स, सो स्टॉप प्लेइंग ऑन द, हाँ वो एक चीज़ है जो आप बंद कर सकते हो,
I am telling not to stop the physical activities, but all these online games and this thing, they are very bad for your mental hygiene. There is a physical hygiene and there is a mental hygiene also. Okay, you understand mental hygiene? Yes. So आपके जो जहन की जो सेहत है उसके लिए ये बहुत बुरी चीज़ है कि आप ब्रेक लेने के लिए you go on online and go on playing, and then when they start it goes on for 2 to 3 hours also. है ना, चलता है ना कि बंद कर दिया सब कुछ. अभी कितनों का ऑनलाइन गेम्स चल रहा है बॉयज़? हाँ, धीरे धीरे हिम्मत होगी एक एक की देख के. आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू रेज द हैंड्स. यस, आई एम राइट. सो ये जो आप लोग जो ब्रेक लेने के लिए आप जो मोबाइल का सहारा लेते हो या लैपटॉप पे जाते हो, डोंट डू दैट. ब्रेक लेना है तो यू गो आउट, कनेक्ट योर सेल्फ विथ नेचर. आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है, तो डोंट आप मोबाइल और इंटरनेट का सहारा लेके आप अपने आप को ब्रेक मत दीजिए. नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज, ठीक है मैंने पढ़ाई करनी है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो अभी फेल हो गया था, या मैं जितना मार्क्स लाना चाहता था उतना नहीं ला पा रहा हूँ या ला पा रही हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड फेलियर. तो डोंट लेट दिस फेलियर बिकम योर हिंड्रेंस. ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इतना नहीं कर पाया, जस्ट बी डिटरमाइंड, बी फोकस्ड कि मुझे ये करना है. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विथ अदर थिंग्स, और आप अपनी चीज़ों पे फोकस रहिए कि नहीं मुझे अभी मेरे 3 महीने 4 महीने बाकी हैं. जस्ट गेट डिटरमाइंड. एंड जो भी फेलियर्स पीछे के हैं उनको आप सेटबैक जैसे मत लीजिए. दे कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन इन योर लाइफ. ओके, एंड दैट कैन बी अ फर्स्ट स्टेप इन योर सक्सेस. एनी फेलियर, सपोज अभी तक आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं नाकाम हूँ, मैं, तो दैट फेलियर विल बी अ स्टेपिंग स्टोन. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. जस्ट एनालाइज मैं क्यों नाकाम हुआ, मैं क्यों उतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना मैं करना चाहती थी या करना चाहता था. तो जस्ट एनालाइज, एंड फेलियर शुड नॉट स्टॉप यू इन गोइंग अहेड. ओके, सो जस्ट इट कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन. And have you heard of Thomas Alva Edison? I think 10th standard students, I should not ask this question. So Edison, you have heard, you must have read about his life, and yeah, full of failures, full of mishaps, full of accidents. Okay, so what he invented what? Just tell me one invention. You're the teacher? You are the teacher? No, don't answer. Let the students answer. So, just tell me, he has thousands of inventions in his name. Just tell me one invention. Yes, light bulb. So, light bulb से उसने दुनिया को ही रोशन नहीं किया, बस उसके लाइफस्टाइल ने बहुत सारे दिमागों को भी रोशन किया हुआ है. तो what he said, he has hundreds of quotes if you read his life. So, what he said, कि after his failures, कि my failures are not my failures, I have not failed, but these have taught me, I have learned at least 10,000 ways which won't work for me. So he was so positive, I have learned 10,000 ways which won't work for me. So that positivity should be there. Failures should not stop you from going ahead. So you have to be determined and focused in going ahead. Okay, so just be determined, be focused, and perseverance or resilience. आपको कोशिश करती रहनी है. Perseverance, can you define anybody perseverance? What is it? Anybody, any boy, girl? So it is, you have not heard of this word, please underline this in your minds. Perseverance is just working continuously towards your goal. Okay, although however slow it can be, persistence or endurance. Okay, so these are the 2-3 words. So ये जो कि मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते रहना, ये जो है आपका perseverance. आप एक स्टूडेंट हैं, 10th स्टैंडर्ड आपका डेस्टिनेशन नहीं है. एसएससी पास करना, एसएससी में अच्छे मार्क्स लाना, ये मकसद तो हो सकता है, बट आपका ज़िंदगी की मंजिल नहीं है ये. ठीक है, दिस इज, यू आर इन अ जर्नी, एंड अ वेरी लवली जर्नी, वेरी कलरफुल जर्नी ऑफ योर लाइफ, विच इज़ द यू आर अटेनिंग, यू आर सीकिंग एजुकेशन. ये सबसे ज़्यादा सुनहरा दौर होता है एजुकेशन का. तो डोंट स्टॉप लर्निंग एट एनी पॉइंट. Seek knowledge in the classroom, seek knowledge outside of the classroom, be close to your teachers,
रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओके। हाउएवर लाइक आपको लगेगा यार मेरे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं है, इनको क्या आता है, हाँ, उनको बहुत कुछ आता है, तो उन्होंने वो आपको दुनिया में लाने का जरिया है अल्लाह ताला के बाद, तो वो आपको उनका रिस्पेक्ट सबसे पहले कीजिए। और जो भी आपके टीचर्स हैं जिसने आपको एक लफ्ज़ भी पढ़ाया होगा इन 10 सालों में 12 सालों में, उन सबका आप रिस्पेक्ट कीजिए। जस्ट ये सोच लीजिए कि किसी ने एक लफ्ज़ भी मुझे सिखाया है, वो मेरा उस्ताद है और मुझे उसकी इज्जत करनी है। ये 2 चीज़ आप करना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं, और फिर उसकी बरकत देखिए आपकी ज़िंदगी में, आपके वक्त में, आपके इल्म में, तालीम में, सब में बरकत आ जाएगी। उसकी ये एक मैजिक है कि आप अंदर से दिल से रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। तो सब स्माइल कर रहे हैं, जो अगर सपोज कहीं ना कहीं तो होगा मन में यार कि हम ये इतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितना करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको रिस्पेक्ट, जो अदब है, एहतराम है उस्ताद का वो, और सबसे पहले वालिदैन का, तो आप वो रिस्पेक्ट ज़रूर अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करिए। अगर सपोज नहीं आ रहा है, दुआ मांगिए कि अल्लाह मेरे दिल में इनका एहतराम पैदा हो, जितना होना चाहिए उतना एहतराम पैदा हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बहुत क्लोज करेगी अपने मंजिल से, अपने मकसद से। ट्राई टू सीक नॉलेज बियॉन्ड द क्लासरूम। आप क्लास में तो नॉलेज ले ही रहे हैं, आपको बियॉन्ड द क्लासरूम, आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, नाउ डेज इट्स वेरी ईजी टू सीक नॉलेज। आपके पास डॉक्टर गूगल है, मैं डॉक्टर गूगल कहती हूँ बिकॉज माई प्रोफेशन इज़ डॉक्टर, बट आपके यहाँ टीचर्स भी यही कहते हैं, मतलब आप जाइए कुछ भी चीज़ सर्च कीजिए और आपके पास एट द फिंगर टिप इट इज़ अवेलेबल, ओके। सो कोई मीनिंग हमारे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years बैक, हमको जब हम जब स्कूल में थे कि हमको जब कुछ लगता था, वी यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी, सिट फॉर एटलीस्ट 10 hours 12 hours, और उसके बाद जब निकलते थे बहुत सारी किताबें और बहुत सारे रेफरेंसेस और लेके, और फिर कहीं जाके हम 1-2 पेज का कुछ नॉलेज ख़जाना लेके बाहर निकलते थे लाइब्रेरी से। लेकिन ये आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास रेफरेंसेस, बुक्स एंड सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल एट योर palm and at your fingertip. So please take advantage of this technological evolution which we are living in today's era. And आपको जब मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ करना है तो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूज़ करिए, ना कि उसको फजूल गेम्स और फजूलियात में। जो आई नो ऑल योर गेम्स नेम्स, ओके, सो आई कैन नेम देम बट आई डोंट वांट टू, जिसमें आपके 3-3 4-4 घंटे क्या रात भर भी गुजर जाती है। तो ये सारे गेम्स खेलने में और इसमें उसका इस्तेमाल ना कीजिए। ट्राई टू सीक नॉलेज थ्रू दैट इंटरनेट एंड थ्रू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अब ऐसे लगता है कि आपको लगता है बहुत सारे डाउट्स आते हैं क्लास में, तभी तो हम लोग समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसे लगता है ना कि यार ये पूछूं या ना पूछूं। अभी आप 10th में हैं, 3-4 महीने ही बाकी हैं, मेरे ख्याल से 3 महीने बाकी हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है, मैं ये पूछूं या ना पूछूं। तो आप पूछिए, कितना भी बेवकूफ़ाना सवाल हो पूछिए। आपको लगेगा ना ये बहुत सिली लगेगा, लोग हंसेंगे मेरे सवाल पर। सो सम वाइज मैन टोल्ड दैट द सिलीएस्ट क्वेश्चन वाज द क्वेश्चन विच यू डिड नॉट आस्क, ओके। सो जो सबसे ज़्यादा सिली क्वेश्चन था वही था जो आपने पूछा नहीं, बाकी जो भी आपने पूछा एवरीथिंग इज़ wiser than that question. So try to ask questions to anybody, like your teachers or your mentors or your school parents if they are teaching you, anybody, your friends, your seniors. Try to ask questions and clear your doubts. Be very clear. Don't go to the exam hall with doubts in your mind. Be very clear in all your concepts. Then one more thing after all these, because of which we lag behind, and that is procrastination. What is that? Perseverance एक नया word था, and procrastination. Tell me the meaning of procrastination. Anyone? Teachers are not allowed. So any student? No, madam, you are also not allowed. So any student, पीछे से आगे से कहीं से भी, boy girl, प्रोक्रेस्टिनेशन, मोबाइल्स हैं आपके पास तो उसमें अभी तक आ गया होगा। तो nowadays I get this in my clinics and all, when I take lectures, clinics for my students, they search on mobile and they come up with the answer. So yes, tell me. Want to achieve something for the Tell me. To do hard work to achieve our goals. No.
It is no, it is not hard work. Any of the teachers? So procrastination, I will explain. Procrastination बस एक आपने उर्दू में वर्ड है करके, आपने शायद एक आर्टिकल भी रहा होगा, कभी पढ़ा होगा कि ठीक है बाद में कर लेते हैं। एक लफ्ज़ होता था बड़ा, अगले ज़मानों में बहुत ख़राब माना जाता था, जो ये की लानत कही जाती थी, है ना। तो ये चीज़ जो है, किसी चीज़ को टाल देना, टू पोस्टपोन समथिंग फॉर अ लेटर डे और टाइम, is called procrastination. वो जो and that you must have seen, that is there, inbuilt हो गई है आजकल हम लोगों के अंदर कि हाँ ठीक है ये करना है ना, मैं कल कर लूँगी, या मैं परसों कर लेती हूँ, या ठीक है अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं कुछ दूसरा कर लेती हूँ और मैं अगले हफ्ते कर लूँगी। Don't do that. Whatever you have planned for today, try to finish off that. Whatever has been entitled, like has been given to you to work, any work or any task, try to complete that task in the same sitting or at the same given time. Don't postpone it. Don't postpone. The meaning is correct, madam? Yes. Yeah. No, I want to do, but I'm not able. Yes. That's procrastination. Yeah, not able to do is the excuse. Okay, I want to do, that is there in my list, but I am postponing it. Yes, है ना? So I'm postponing it because of some reasons. Some excuses are given for that. So you are postponing it due to your inability to do that, and you give excuses for that. So try to complete that task in time. काल करे सो आज कर। Oh, very good. और आगे? नहीं, आज करे सो आप, और what is the second line? पल में परले होगी, और yes, thank you for completing. So आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है ना, तो ये इसको टालना किसी चीज़ को नहीं है। Very good. So आपको ये जो टालने वाली चीज़ है ना, इसको टालना नहीं है। कोई भी चीज़ आपको जो असाइन की हुई है, try to do it now only and finish it off. So that will keep you nearer to your goals, and you will achieve better and easier. And आपको लास्ट आवर्स में वो स्लॉग नहीं करना पड़ेगा कि नहीं मुझे जागना है, मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। Then comes the question of intelligence and hard work. ओके, मैनी पीपल से कह रहे वो तो बहुत ज़हीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको क्या है, वो तो एक बार पढ़ लेगा उसका हो जाएगा, या वो एक बार पढ़ लेगी उसका हो गया। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद समबडी एल्सेस इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंट है, हो सकता है वो एक बार में पढ़ ले रहा है, बट आप हार्ड वर्किंग हो ना, तो आप 3 बार में तो कर लोगे। करके देखिए, जस्ट हार्ड वर्क कैन नॉट, नथिंग कैन सब्सटीट्यूट हार्ड वर्क। ओके, दैट इज द बेस्ट थिंग एंड बेस्ट पॉलिसी फॉर अ स्टूडेंट एंड ऑल योर लाइफ, not only now, whenever you go out, you start living your life as a professional or as anybody, hard work cannot be substituted by any kind of intelligence or any other qualities. So just underline this word hard work in your minds and go ahead. So मेहनत, जो कंटिन्यूस मेहनत होती है ना, मुसलसल, जहद मुसलसल, और आप है ना मिस, कैन यू जस्ट टेल मी समथिंग जहद मुसलसल पर कोई शेर, शिराज भाई? जिंदगी नाम है जहद मुसलसल का फना, राह रो और भी थक जाता है आराम के बाद, है ना, सुना था ये? तो ये जो जहद मुसलसल है, हार्ड वर्क है, ये ज़िंदगी आसान नहीं है। नथिंग है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सो ये आपको कहीं भी आसानी नहीं मिलेगी। आपको लगेगा अरे 10th पास हो जाऊँ बहुत आसान हो जाएगा, नथिंग है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा ज़माना है, ये समझ के चलिए। नथिंग इज़ एज गोल्डन एंड एज प्रिटी एज योर 10th स्टैंडर्ड। जस्ट थिंक दैट आगे बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत जद्दोजहद है, लेकिन आपको हर जद्दोजहद से आसानी से गुजरना है, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, because of your perseverance, because of your determination, and you have to be focused. Okay, don't let any of the failures come in your way कि नहीं मैं तो नाकाम हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नाकामी कोई आगे बढ़ने के लिए नहीं रोकती। It doesn't stop you from going ahead. So, anything else? So just my message to you, tell me. जो पानी से नहाएगा वो कपड़ा बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो कपड़ा बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ओह, वेरी गुड
जिस बच्ची ने कहा कि जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, तो तारीख बदलने के लिए बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो आपको पसीना बहाना है, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। कहीं पे जाके मजदूरी नहीं करनी है, ठीक है, मेंटल स्लॉगिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको डिटर्मिनेशन ऑफ चेंजिंग द हिस्ट्री, आपको जो एरा बदलने के लिए आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यू गर्ल्स। मेरा स्पेशल मैसेज है आप लड़कियों के लिए कि आप तालीम हासिल कीजिए, कोई भी रुकावट आए आप अपने हुदूद में रहकर, अपने दायरे में रहकर, अपने शरई दायरे में रहकर जो भी आप हासिल करना चाहती, कोई चीज़ आपको नहीं रोकती, कोई चीज़ आपको तालीम हासिल करने से नहीं रोकती। अगर आपके घर में कोई रुकावटें हैं आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, है ना। आप माशाल्लाह अच्छे घर की बच्चियां हैं, तो आप जो इल्म में नाफे होता है ना कि आप तिब के शोबे में जाइए, एजुकेशन के शोबे में जाइए, ऐसी चीज़ जो आप दूसरे लोगों को नफ़ा पहुंचाए, तो उससे इंशाअल्लाह आपको कोई नहीं रोकेगा, ना कोई दीनदार ना दुनियादार, इंशाअल्लाह, है ना। तो आप लोग अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किए कि हमको ये तालीम हासिल कर, डोंट गो इनटू फैशन एंड फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल, सो दे विल डेफिनेटली स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग देयर, बट आप लोग अपने इल्म में नाफे हासिल करने की कोशिश करिए, जो कि आपके घर के लिए और आपकी सोसाइटी, जो हमारे समाज के लिए, हमारी कौम के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि नफ़ा बख्श हो, जो कि फ़ायदा पहुंचाए। और एक लड़की पढ़ती है, बार बार रिपीट होता है, बट अगेन आई विल रिपीट इट, कि एक लड़की पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है, पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है। एक लड़का पढ़ता है तो वो लड़का ही पढ़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से तालीम की एक्सपोनेंशियल राइज हो। यू अंडरस्टैंड एक्सपोनेंशियल? यस, मैथ्स 10 raised to the power n, so it should go into that exponential rise if the girl gets educated, okay? So आप 2-3 जनरेशन्स के बाद देखेंगे ना पूरी फौज रहेगी एजुकेटेड आपके बाद। तो ये आप लोग यहाँ से बहुत गहरा आज़म करके जाइए कि हमको एजुकेशन लेनी है किसी भी कीमत पर, और इसके लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, परसिवियरेंस, अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हार्ड वर्क, बी फोकस्ड, बी डिटरमाइंड। लास्ट में anybody can name, I know this is an English medium school, but anybody can name the poet of East, शायर मशरिक? Any teachers? Miss आप? No? Nobody? सर तो ठीक है, सर तो बता ही देंगे। तो शिराज भाई, जस्ट मैं एक बच्चों को इख्तिताम से पहले शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर कह के ये इख्तिताम करना चाहती हूँ कि यकीन महकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मोमिन की शमशीरें। थैंक यू।